Good morning, ma'am. Can we do some revision in this class? Yes, Peter. Let's start. We were doing what in the morning? Structural organization in animals. We have done Can we the do some revision in this class? uh, now to your exam has changed only, beta. Biology to pata nahi. I think it will go to the last now. Yes, So ma'am. Might be uh, 40. which one will be your first exam now? English. After English would be the first now. Yes, ma'am. Because we don't have any gaps here. I think English ke baad, we don't have any gaps. We just have one day holiday for each now. Yes, ma'am. If we keep it in the middle, then also we will have problem. I mean, you will have problems if we skip preparatory leave in any of the subjects. I think optional can be skipped otherwise. What do you see? Optional subject? Do you need a leave for that as well? Ma'am, but we have like for physics exam, we have 5 days of gap in between. Better you people have, I think math students do not have. Yes, ma'am. Math students. I think they do not have those gaps. What we can do is they'll get a less gap. You people will also get a less gap. So we can adjust, you're right, we can adjust biology somewhere over there when you're getting a 5 days gap. Let's be free soon. You also be free. That would be better. But I don't think ऐसे हो पाएगा बच्चा. Because if we change the date sheet in the middle, ना, it creates a lot of confusion. We've seen it in many years. जब भी ऐसा करते हैं बीच में रख देंगे, many students they get confused. And many of them miss out on the exam. That is why we always prefer कि अगर exam miss हो रहा है, it's better we keep it at the end. Yes, So ma'am. I In think the message, it was written. It will be in the end. because it always happens whenever we try to do this now, half of the students they get confused. They don't know only when is the exam, what it is. Plus your preparation also ना सब गड़बड़ हो जाएगा. You have planned कि इतना छुट्टी we are getting for this, इतना छुट्टी we are getting for this. So dear, what do you want to do? You don't want to study? सोच लो bio is on 30th only. अभी तो है नहीं. But still if you want, I can take up something. Tell me. Or should I continue with this or if you want me to
do revisions of a particular chapter, I'll take up revisions. Whichever chapter you say, I'll do. Ma'am, continue. Revision? Okay, fine. Revision of which chapter should we do? Tell me. Ma'am, if we can do mixed revisions, like you can give some questions and we will just try to answer them. Okay. You want to do all things mixed up, like we were doing a few questions that day. Yes, ma'am. A bit of revisions we can certainly take up, Bache. No problems. So initial first two chapters, so I think we have done revisions. थोड़ा बहुत. Let's go further. ऐसा करके देखते हैं. Let's go a little further and revise. Which is the chapter you feel सबसे ज़्यादा confusion हो रहा है? ऐसा करते हैं. Let's discuss first and then I'll go with it. बताओ कौन सा चैप्टर ऐसे जिसमें लग रहा है कि मैक्सिमम कंफ्यूजन हो जा रहा है, लर्न कर रहे हैं फिर भी लर्न नहीं हो रहा है ठीक से. इट ऑफन हैपेंस ना. टेल मी. हाँ जी बच्चे. थिंक फॉर अ मिनट. इट्स ओके. थिंक फॉर अ मिनट एंड टेल मी कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है. Ma'am, biomolecules. Ma'am, biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स. ओके फाइन. ठीक है. यू वांट मी टू रिवाइज द चैप्टर और यू वांट मी टू आस्क द क्वेश्चंस? Ma'am, revise. Ma'am, ask the question. Difference in opinion, huh? Chalo, let's see. Side by side when I ask, it will be a revision also for us. We can do that. Biomolecules, no doubt. थोड़ा सा lengthy है. It's not that it is difficult, but है. What do we mean by biomolecules? What are biomolecules? Carbon Ma'am, all the- compounds that we get from living tissues are called organic biomolecules. Okay, very good. See, normally in living organisms, beta, we have two things, two elements which are in a higher amount compared to the things which are non-living. One, your friend has already told you, it's carbon. Can you tell me which is the next one? Comparatively, living organisms में इन दो elements का amount ज़्यादा रहता है. One is carbon, which is the other one? Hydrogen. Very good. Very good. Very good. It is hydrogen. So just remember, biomolecules means we are talking about molecules which are found in living organisms and they have abundance of which two elements? Carbon and Carbon and hydrogen. Very good. Next part जो आता है chapter में, that is how to analyze a chemical composition. कैसे पता चलेगा that what is this compound made up of? Chemical analysis करते हैं. What analysis we do? Chemical analysis. Chemical analysis. इसमें हम लोग कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेंगे. यू कैन टेक अ वेजिटेबल और इफ यू वांट टू ट्राई एन एनिमल टिश्यू तो एक छोटा सा पीस ले सकते हैं फ्रॉम द फ्लैश ऑफ लिवर ऑफ एन एनिमल. एंड सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप प्लीज रिमेंबर वी आर गोइंग टू ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. वी ग्राइंड इट इन व्हाट? Trichloroacetic acid. Yes, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. वी आर गोइंग टू ग्राइंड इट. ठीक है. अब when you are going to grind it, आपको क्या मिलेगा? You'll get a thick paste, जैसे हम स्लरी बोलते हैं. गोबर गैस प्लांट में ये वर्ड पड़ा होगा, स्लरी. So first step is we have grinded the tissue with trichloroacetic acid and we have got a thick what? Slurry. फिर हम इसको strain मतलब filter कर लेंगे through a thin cloth. ठीक है. We are going to filter it. जब हम filter करेंगे हमें दो parts मिलेंगे बेटा. ठीक है. One part which is acid soluble part and the second which is acid insoluble part. After you filter you get two parts. एक part ऐसा होगा कुछ part जो acid में soluble होंगे
कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो एसिड में इनसॉल्युबल होंगे. द साइंटिस्ट they tried to find out, they found कि organic compounds we get in the acid soluble pool. यानी जो acid soluble pool है, that will be which tissues or which compounds? Organic compounds. Okay? So आपको simple आपने differentiate कर सकते हो. जो भी part acid soluble आ जाएगा, that is which part of yours? Organic or inorganic? Organic. Yes, it is Organic. organic. हाँ जी बच्चे, दिस इज सिंपल. एक और एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करते हैं. सपोजिंग कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले लिया, यू कैन टेक लीफ व्हाटएवर, ड्राई कर लो बेटा. पूरा जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है हम उसका वेट लेते हैं, दैट इज नोन एज ड्राई वेट. एंड विद वाटर अगर हम वेट करते हैं किसी चीज को, दैट इज नोन एज वेट वेट. सो यू टेक अ लीफ और यू टेक अ लिवर एंड उसको ड्राई कर लो, उसका ड्राई वेट ले लो जब पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. नाउ यू बर्न द टिश्यू. पानी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ड्राई वेट है. वी बर्न द टिश्यू. वी विल सी कि जितना भी कार्बन है बेटा वो तो ऑब्वियसली CO2 बन के निकल जाएगा, राइट. वट एवर कार्बन, सपोजिंग यू आर बर्निंग अ टिश्यू एंड उसमें कार्बन है, सो व्हेन इट्स बर्न्ड वो CO2 बनेगा एंड वो निकल जाएगा सारा. व्हाट इज लेफ्ट विद यू इज एश. अब ये जो एश है, दिस कंटेन्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, मतलब कि सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, व्हाट आर दीज कंपाउंड्स? Inorganic compound. सो एलिमेंटल एनालिसिस अगर हम करें तो लिविंग टिश्यूज में मेनली आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ही मिलेगा. और ये जितने भी आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम है, मेनली वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चले जाएंगे. अमीनो एसिड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, जस्ट रिमेंबर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ व्हाट आर अल्फा अमीनो एसिड्स? What are alpha amino acids? Tell me. What are alpha amino acids? देखो बेटा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप है एंड सेम कार्बन पे एसिडिक ग्रुप भी है, अल्फा कार्बन. ओके, अल्फा कार्बन, इसको हम बोल देते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स. अल्फा क्योंकि अल्फा कार्बन पे अटैच्ड है, अमीनो क्योंकि अमीनो ग्रुप से अटैच्ड है. सो व्हाट इज एन अल्फा अमीनो एसिड? किसी भी अमीनो ग्रुप के, देखो बेटा, एक अमीनो ग्रुप है एंड उसका एक सब्स्टिट्यूएंट आपका अल्फा कार्बन पे कौन सा एक एसिडिक ग्रुप अटैच हो जाए. मीथेन, आप मीथेन को इमेजिन करो, क्या फॉर्मूला होता है बेटा मीथेन का, बताओ. CH4. CH4. Now I'm just trying to explain the same thing. तो 4 हाइड्रोजन हैं आपके पास. दैट मीन्स हम 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं. चारों वैलेंसी पोजीशंस में हाइड्रोजन की जगह कितनी चीजें रिप्लेस हो सकती हैं? मैक्सिमम 4 ना, क्योंकि वैलेंसी कितना है हमारे पास, कार्बन के साथ 4 ही है. अब ध्यान से सुनना, एक जगह तो हाइड्रोजन ही रहा, एक जगह अमीनो ग्रुप अटैच हो गया, एक जगह आपका एसिडिक ग्रुप आ गया, एंड जो लास्ट वाला है उसको हम R ग्रुप बोल देते हैं, दैट इज एनी वेरिएबल ग्रुप. सो व्हाट आर द 4 थिंग्स वी सेड? एक पे तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन है, एक पे आपका एसिडिक ग्रुप आ गया, एक पे अमीनो ग्रुप आ गया, यानी सेम कार्बन पे आपका अमीनो ग्रुप भी अटैच हो गया एंड आपका एसिडिक ग्रुप भी अटैच हो गया. सो व्हाट आर दीज? दीज आर व्हाट? दीज आर अल्फा अमीनो एसिड्स. एक मैंने आपको बोला R अटैच्ड होता है, R. अब R जो है उसके बेस पे हमारे अमीनो एसिड डिसाइड हो जाएंगे. ओके, जैसे कि हमारे प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स? टेल मी, हाउ मेनी काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्म द प्रोटीन्स? No idea? 20. Yes, there are 20 types. Very good. So I told you, आप हमेशा मीथेन को दिमाग में रखेंगे. एक तरफ हमारा R ग्रुप है, एक तरफ हमारा एसिडिक ग्रुप है, एक तरफ हमारा अमीनो ग्रुप है. Is it okay बेटा? This is what we said. And एक तरफ तो we said we have hydrogen. अब R ग्रुप पे क्या लगेगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड बनेगा. सपोजिंग R ग्रुप पे क्या आ गया? हाइड्रोजन लग गया एक और. सो हम इसको बोल देते हैं ग्लाइसिन. व्हाट विल वी कॉल इट एज? Glycine. Yes, we already have one hydrogen, we have an amino group, we have an carboxyl group और एक हाइड्रोजन था.
उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो गया, आर ग्रुप की जगह आपका हाइड्रोजन आ गया, सो विल कॉल इट एज ग्लाइसिन। एंड अगर आर ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप आ गया, देन दिस इज कॉल्ड एलेनिन। व्हाट इज इट कॉल्ड? Alanine. यस। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो आर ग्रुप है, जिसको हम वेरिएबल ग्रुप बोलते हैं, इसकी चीजें चेंज होती रहेंगी बेटा। जैसे ही आर की जगह कोई दूसरी चीज आएगी, हमारा अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले तो अमीनो एसिड है क्या? एक ऐसा कार्बन, अल्फा कार्बन, जिसपे अमीनो ग्रुप भी अटैच्ड है, एसिड ग्रुप भी अटैच्ड है, और बाकी दो पोजीशंस पे क्या है? टेल मी। आई टोल्ड यू ना, R मीथेन variable. आर वेरिएबल ग्रुप। एंड व्हाट वाज द फोर्थ वन? व्हाट डू वी हैव एट द फोर्थ पोजीशन? इट्स Acid हाइड्रोजन। group. एसिड, देखो, एसिड, अमीनो, हाइड्रोजन एंड आर, 4 ग्रुप्स अटैच्ड है हमारे। मतलब 3 तो हाइड्रोजन में तो सब्स्टिट्यूशन हुआ ही नहीं, एक हाइड्रोजन तो ऐसे ही रह गया CH4 का। बाकी 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं, एक अमीनो से, एक एसिड ग्रुप से, और एक वेरिएबल ग्रुप आर से। गॉट इट? चलो टेल मी, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव अ कार्बन, फर्स्ट कार्बन है, अल्फा कार्बन है, एंड हाउ मेनी, अगर CH4 का सब्स्टिट्यूशन देखते हैं तो हाउ मेनी वैलेंसीज विल हैव? 4. 4. 4 वैलेंसीज। एक पे तो हाइड्रोजन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन ने जो है कोई सब्स्टिट्यूशन उसका कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। बाकी 3 को उसमें सब्स्टिट्यूशन हो गया। बताइए क्या क्या लग गया? Amino अरविंद? group, acid, and R variable. यस। अब बिकॉज सेम कार्बन पे अमीनो ग्रुप भी लग गया, एसिड ग्रुप भी लग गया, तो ये अमीनो एसिड तो ऑलरेडी बन गया। सेम कार्बन पे एक अमीनो ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है, दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी एन अमीनो एसिड। बट वी सेड देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड के इतने टाइप्स कहाँ से आ जाते हैं? देखो बेटा, अमीनो ग्रुप तो वहीं रहेगा, एसिड ग्रुप भी वहीं रहेगा, क्योंकि अमीनो एसिड है, हाइड्रोजन अपनी जगह पे है। यानी कि रिप्लेसमेंट किस में पॉसिबल है? कौन से ग्रुप में पॉसिबल है? 4 थे ना। वेरिएबल ग्रुप कौन सा था? R. आर। तो आर R. को चेंज करते जाओ, वेरी गुड, आर को आप चेंज करते जाओ, उसी के बेस पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आते जाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ओके, Yes, लेट अस ma'am. कीप, बेटा लेट अस ऑलवेज कीप मीथेन इन माइंड। मीथेन का स्ट्रक्चर याद करिए, C and 4 हाइड्रोजन्स। अब इसी से हमें अमीनो एसिड बनाना है, नाम से ही पता चलता है, अमीनो एंड एसिड। दैट मीन्स एक कार्बन पे किसको रिप्लेस कर दें? एक हाइड्रोजन पे, सॉरी, रिप्लेसमेंट ऑफ Amino group, अमीनो ग्रुप। सेकंड कार्बन, acid, वेरी गुड, एंड थर्ड वन? and third variable, R. Third is a variable group, very good, the R1. So this is already an amino acid because amino group भी लग गया, acid group भी लग गया। But you just now told me there are 20 amino acids. तो फिर क्या difference कहाँ आ जाता है? कौन सा वाला ग्रुप वैरी कर जाता है बेटा? R. Yes, Variable group. R group will vary. We just did an example कि अगर ये लगा दो तो glycine बन जाएगा, ये लगा दो तो alanine बन जाएगा. Okay? So understood how different kinds of amino acids are obtained? Yes, ma'am. We just said कि R की जगह अगर ये लगा देंगे आप, अभी हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है, R की जगह हमने क्या लगाया था? अगर मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो, चलो यू डोंट नो द नेम्स, नेवर माइंड, इतना डिटेल में मत जाइए। द ओनली बेसिक थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि R ग्रुप को चेंज करते जाएंगे, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट नाउ, the chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino, carboxyl and the R functional groups. Now whatever physical या chemical property होगा बेटा किसी भी अमीनो एसिड का, तो आप ध्यान से देखो, सब में हाइड्रोजन सेम है, सब में एसिडिक ग्रुप सेम है, एंड सब में अमीनो ग्रुप सेम है। तो जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है अमीनो एसिड्स का, वो किसके कारण आ रहा होगा? R variable. Exactly, R variable group. Very good. Okay. Now sometimes what happens is, ये जो R है ना, इसकी जगह एक्स्ट्रा या तो एसिड ही ग्रुप और लग जाते हैं या एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप एक लग जाते हैं।
So based on the number of amino, अभी तक तो क्या था, एक अमीनो एक कार्बोक्सिल. Yes, ma'am. Yes, but if the number of acidic group increases, तो हम बोलेंगे ये acidic amino acid है. And अगर amino group ज्यादा हो जाएगा, तो we will say this is what kind of an acid? This is, what will we call? Basic amino acid. What will we call it as? Basic amino acid. एंड अगर दोनों सेम है, जैसा हमने अभी पढ़ा था, एक अमीनो एक कार्बोक्सिल, तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड. सो वी हैव गॉट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स? 3 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स. बेटा ओरिजिनल स्ट्रक्चर जब हमने अमीनो एसिड का पढ़ा था, तो हमने बोला एक अमीनो और एक एसिड ग्रुप लगा है आपका. और रिप्लेसमेंट किसका हो सकता है? आर का हो सकता है. Yes, ma'am. इन प्लेस ऑफ आर एक और अमीनो लग गया आकर के. आप बताइए, एक हाइड्रोजन है, एक एसिड है, कितने अमीनो हो गए? 2 amino. 2 amino. So such kind of amino acids are known as, what are we going Basic. to call them? Yes, basic amino acids. अच्छा, R की जगह let us replace it, एक और acidic group लगा देते हैं. ओके, अब हमारे पास एक हाइड्रोजन हो गया एंड एक आपका अमीनो ग्रुप है. एंड बताइए एसिडिक ग्रुप्स कितने हो गए बच्चे? 2 acidic group. 2 acidic groups. So such kind of amino acid will be known as? Acidic amino acid. Exactly. This is known as acidic amino acids. Let's go back to the original structure जो हमने पढ़ा था. एक अमीनो है, एक एसिड है एंड एक H है और एक वेरिएबल ग्रुप कोई भी लग गया है, मिथाइल विथाइल कुछ भी लग गया, बट नॉट अमीनो. सो एक अमीनो एक एसिड. व्हाट आर दीज अमीनो एसिड्स नोन एज? Neutral amino acid. Yes, beta. They are known as neutral amino acids. So did you understand how many kinds of amino acids are there? Yes, ma'am. नॉर्मल में एक अमीनो एक एसिड. अगर 2 एसिड हो गए तो एसिडिक अमीनो एसिड, 2 अमीनो हो गए तो बेसिक, एंड अगर दोनों सेम सेम है देन इट इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड. ओके, नाउ सी वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स. वो क्या है? दैट दे हैव अ आयनाइजेबल नेचर. आयनाइजेबल नेचर, यू नो, आयंस. Ionizable nature of both amino group is NH2 and your acidic group is COOH. दोनों का ही नेचर आयनाइजेबल है. दे कैन स्प्लिट इनटू व्हाट? दे कैन स्प्लिट इनटू, टेल मी व्हाट? Ions. आयन at different pH level. So what happens is, अगर आप different pH में अमीनो एसिड्स को ले जाते हो, तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. क्यों स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है? If this question is asked, if we take amino acids or if we put them in a condition where the solution is at a very high pH or a very low pH, तो remember कि दोनों ग्रुप NH2 ग्रुप भी आयनाइजेबल है एंड कार्बोक्सिल ग्रुप भी आयनाइजेबल है. सो दे स्प्लिट इनटू आयंस. तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. ओके, इज इट ओके? Yes, ma'am. Now let us talk a little bit about fatty acids. फैटी एसिड में क्या है? वही चीज है जो हमने अभी पढ़ा. आपका आर ग्रुप वेरिएबल होता है ना बेटा? Yes, ma'am. ओके, नाउ यू हैव अ कार्बोक्सिल ग्रुप. फैटी एसिड थोड़ा सा देखो, अमीनो एसिड से फैटी एसिड में क्या डिफरेंस आया? एक कार्बोक्सिल ग्रुप तो है ही. दैट इज ऐसे कैसे समझाऊं? चलो पहले ये समझते हैं. आर ग्रुप could be either a methyl group. Methyl, what is the formula? CH3. CH3. या फिर, वेरी गुड, या फिर R की जगह इथाइल भी हो सकता है. What is the formula for ethyl? C2H5. Exactly. Means if you see the number of carbons are increasing. When you said methyl, you said 1 carbon, CH3, then ethyl, C2H5, methyl, ethyl, propyl, butyl. मतलब number of carbons बढ़ते चले जाएंगे. ओके, मतलब 1 कार्बन से लेकर के 19 कार्बन एटम्स तक हमारा R ग्रुप की जगह अटैच हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टॉक अबाउट पैल्मेटिक एसिड. विच एसिड वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल? Palmitic acid. This has 16 carbons attached.
देखो बच्चे, आपने बोला हमने मिथाइल ग्रुप अटैच किया, मिथाइल इज CH3 यानी 1 कार्बन वाला आपने अटैच किया। अगर आपने इथाइल अटैच किया तो C2H5। प्रोपाइल क्या होता है बताइए, व्हाट इज प्रोपाइल फॉर्मूला? बच्चे बताओ, प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होता है? कैसे बनाते हो एल्काइल ग्रुप्स? मिथाइल का फॉर्मूला CH3 कैसे आता है? Propyl C3H7. यस एग्जैक्टली। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करते जाओ, एक कार्बन बढ़ता चला जाएगा। CH3, C2H5, C3H7। अच्छा, अगर हम C3H7 को अटैच कर रहे हैं R पोजीशन पे, दैट मीन्स हम लोग एक 3 कार्बन कंपाउंड अटैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कितने कार्बन अटैच कर रहे हैं? 3 carbon. यस। सिमिलरली हम लोग बहुत सारे 19 कार्बन तक अटैच कर सकते हैं। I gave you an example of palmitic acid and I told you how many carbons are attached in this? 16. Yes, beta. Very good. Okay. Please remember it has got 16. Okay. Now see, let's talk about living organisms. They have a number of carbon compounds. जिनमें कार्बन कंपाउंड स्ट्रेट चेंज में नहीं होते हैं बेटा, रिंग्स के फॉर्म में होते हैं। बेंजीन, बेंजीन, इफ यू रिमेंबर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, you remember the structure of benzene? Yes, Linear ma'am. structure. Is it linear or is it a ring structure? Ma'am, ring structure. Exactly. So similarly, living organisms में भी सारे कार्बन कंपाउंड स्ट्रेट स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं। Some of them are even heterocyclic rings. Okay. Now, some of these are nitrogenous bases. जो nitrogenous bases like nitrogen bases, you know, adenine, cytosine, uracil, thymine. अब बेटा जब भी ये बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस शुगर से अटैच हो जाते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज इट कॉल्ड? Nucleoside. शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन, कोई भी। सो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। एंड जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? Nucleotide. Nucleotide. Very good. Now supposing I say deoxyribonucleoside, इसका मतलब शुगर तो है deoxyribose. What is the sugar? deoxyribonucleoside बोला मैंने, इसका मतलब शुगर है deoxyribose, कोई एक नाइट्रोजनस बेस है, and do we have a phosphate group or we don't have? Tell me. Nucleotide. Ma'am, we have Nucleotide. a phosphate group. Yes. अच्छा, अब ये बताना, ribonucleoside, which sugar? Which sugar? बेटा we have two kinds of sugars, ribose and deoxyribose. ठीक है, अब बताओ ribonucleoside, which sugar? Ribonucleoside. Ribose. What is the sugar? Ribose. And it's a nucleoside. So ribose sugar plus nitrogenous base. Do we have a phosphate group? No, ma'am. No. So please understand the important difference between nucleoside and nucleotide. A sugar and a nitrogenous base is called nucleoside or nucleotide. Nucleoside. Nucleoside. एंड जब इन दोनों के साथ शुगर एंड बेस के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाता है, देन व्हाट इज इट कॉल्ड? Nucleotide. Tide. ओके, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। अंडरस्टैंड द डिफरेंस? अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है तो न्यूक्लियोटाइड, अगर नहीं है, साइड वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब ओनली शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस है। नाउ वी कम टू मेटाबोलाइट्स। देयर आर टू काइंड ऑफ मेटाबोलाइट्स, primary metabolites and secondary metabolites. Okay, which two kind of metabolites? Primary and secondary Primary metabolites. metabolites and secondary.
तो मेटाबोलाइट से कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, बायोमोलिक्यूल्स को ही हम मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं, ठीक है, डोंट वरी, मेटाबोलाइट्स आर बेसिकली नथिंग, दे आर बायोमोलिक्यूल्स ओनली। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपली क्या बोल देंगे, मेटाबोलाइट्स बोल देंगे। चलो लेट्स डू दिस। सपोजिंग वी टॉक अबाउट एनिमल टिश्यू, वी टॉकिंग अबाउट व्हाट, एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज के अंदर हमने पहले ही देखा हमें क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, थोड़ा बहुत कैल्शियम भी मिल जाएगा। सो एनिमल टिश्यू के अंदर हमने पहले ही देख लिया काफी चीजें मिली। तो जो कुछ भी एनिमल टिश्यू में मिला ये सारे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? Primary metabolites. So whatever you will find inside an animal tissue, it is a primary metabolite. And if you open up a plant tissue, a fungus or a microbe, तो अंदर जो कंपाउंड्स निकल जाते हैं जैसे अल्कलॉइड्स, फ्लेवोराइड्स, ठीक है, रबर्स, एंटीबायोटिक्स, पिगमेंट्स, ठीक है, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। So if you open up an animal tissue and under say whatever things are coming out, whatever like hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, which metabolites are these? Primary metabolites. Yes, bache, they are primary metabolites. And if you open a plant tissue or you open up a fungus or you open up a microbe body, and then whatever you get inside, it could be pigments, gums हैं, raisins हैं, spices हैं, तो plant body कट करके जो अंदर से आ रहा है, what are these metabolites known as? Secondary metabolites. Yes, secondary metabolites. So as of now, just remember the difference between primary metabolites and secondary metabolites. If you cut open an animal tissue, whatever you're getting inside is a primary metabolite, and plant tissue, fungus and microbes को cut करके जो भी अंदर से आएगा, that is what we call as secondary metabolites. Clear till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let us do what are biomacromolecules. Don't get confused, metabolites same होते हैं. Let us do biomacromolecules बेटा. जो भी compounds हमें acid soluble pool में मिलते हैं, we have already done this. This is, they have molecular weight 18 to 800 Daltons. ये याद कर लीजिए. Macromolecule, बड़े बड़े ज्यादा weight है इनका. How many Daltons? 18 to 800 Daltons. Please speak out. What is the molecular weight? 18 to 800 Daltons. Dalton. Very good. Okay. So biomacromolecules. Now, if we go to the other side now, ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो और माइक्रो? Macromolecules. मैक्रो, ठीक है। अब बेटा कुछ ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन्स से नीचे रह जाएगा, उनका कंपैरेटिवली वेट छोटा। अच्छा, अगर हम सिंपली बायोमोलिक्यूल्स बोले तो हम किसकी बात करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स? Both. Macromolecules. There was a little confusion here. We got the answer as both. So let us take it again once. There are two kinds of molecules, biomacromolecules and biomacromolecules. And if I do not say anything, okay, I just say what? Tell me, I will just say biomolecules. So I am talking about what? बड़े वाले का या छोटे वाले का? माइक्रोमोलिक्यूल्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स? Macromolecules. ठीक है बेटा, देखो डिफरेंस समझो इसे कि हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो करते हैं किसके बेस पे करते हैं, मास के वेट पे, वेट के वेट पे करें हम। व्हाट इज द यूनिट वी आर यूजिंग ओवर हियर? Dalton. यस। अब जल्दी से सुनो, लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट छोटा वाला मॉलिक्यूल जिनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, पहली बात याद रखना, नेम इज माइक्रो। तो इनका साइज भी छोटा है, मॉलिक्यूलर वेट भी छोटा है। बहुत डिटेल में मत जाइए, बस जनरल बातें याद रखिए। साइज इज स्मॉल, वेट इज लेस, स्ट्रक्चर भी इनका बहुत सिंपल होता है, ठीक है। एंड बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा चले जाइए मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे, लार्ज साइज है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है एंड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके। एंड ये बेसिकली आप देखोगे कि पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, लाइक पॉलीसैकेराइड्स। बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल इज व्हाट? Polysaccharides.
बेटा जितने भी मोनोमर्स होते हैं ना, मोनोमर एंड पॉलीमर तो पता होगा। मोनोमर इज अ सिंगल यूनिट, मोनोमर का मतलब सिंगल यूनिट, एंड पॉलीमर बहुत सारी यूनिट्स मिलके एक बड़ा चीज बन गई। जैसे आपने वो जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, बीड्स, नेकलेस, छोटे छोटे मोतियों से नेकलेस बना, तो वो जो ईच बीड है वो मोनोमर है। उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लेकिन जब सारे बीड्स मिलके एक नेकलेस बन गया, देन दैट इज अ पॉलीमर। पॉली मीन्स मेनी। तो स्ट्रक्चर किसका सिंपल होगा बताइए, मोनोमर का या पॉलीमर का? Monomer. मोनोमर। सो आप बस इतना याद रखिए, माइक्रोमोलिक्यूल छोटे होते हैं, जस्ट कीप इन माइंड द बीड्स, जो मोती होते हैं नेकलेस के, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। स्मॉल इन साइज, मॉलिक्यूलर वेट भी छोटा है, एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, एंड दे आर मोनोमर्स। लेट अस मूव ऑन टू मैक्रोमोलिक्यूल्स। दे आर व्हाट? लार्ज इन साइज। अब हम नेकलेस की बात कर रहे हैं। दे आर लार्ज इन साइज, एंड स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? Small. मैक्रो, मैक्रो, Polymer. मैक्रो। हाँ जी, they are polymers. Basically, that means they are larger in size, na, and they are actually polymers. So this is the difference between biomicromolecules and दूसरा कौन सा था? Macromolecules. Macromolecules. ठीक है बच्चे, चलो एक बार फिर से कर लेते हैं बड़ी जल्दी जल्दी। माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे होते हैं साइज में, उनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? Small. ज्यादा होता है बच्चे। Ma'am, of micro or macro? Micro, I'm asking you about the micromolecules. What does the word micro mean? छोटा और बड़ा। And small. Yes, exactly. Exactly. And macromolecules, the size would be larger. Micromolecules are monomers. And macromolecules, we talk about their polymers. Supposing polysaccharide. Polysaccharide का मतलब क्या होता है? Saccharide is a sugar. तो बहुत सारे छोटे छोटे शुगर के यूनिट्स कंबाइन कर गए तो पॉलीसैकेराइड बन गया। सो बेटा आप बताओ पॉलीसैकेराइड क्या होगा, मोनोमर होगा या पॉलीमर होगा? Polymer. पॉलीमर। एंड इफ आई टॉक अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों में से क्या होगा ये? पॉलीसैकेराइड। Macromolecule. वेरी गुड। एंड सिंपल एक शुगर एटम, शुगर पार्टिकल ले लेते हैं, तो वो माइक्रो है मैक्रो है? Micro. Micro. So we have got two kinds of molecules, macro biomolecules and micro biomolecules, जिनका साइज छोटा है, वेट छोटा है, स्ट्रक्चर सिंपल है, और जो मोनोमर्स हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। जिनका साइज बड़ा है, वेट ज्यादा है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, एंड पॉलीमर्स हैं, दे आर व्हिच मॉलिक्यूल्स? Macro. Yes, they are macromolecules. Never mind, we'll continue with revisions. आप मुझे पहले बता देते, I would have taken up this chapter again. So we have to start with proteins now. Before I go ahead, बस इस chapter में हमने 1, 2, if I go according to NCERT, 5 pages we have revised, 5.5 pages. I'll try and speeden up tomorrow. So सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन, फिर हाउ टू एनालाइज, जो हमने बताया था ग्राइंड करना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में 2 पोर्शन मिलेंगे, सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल। देन वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। फिर अमीनो एसिड्स के 3 काइंड्स करे थे, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, एंड थर्ड वाला क्या था बेटा? Neutral amino acid. Neutral amino acids. Then we talked about 2 kinds of metabolites, primary metabolites and Secondary Metabolites. then we difference between the molecules. Which molecules? Biomicromolecules and Micromolecule. biomacromolecules. So we don't have time.